Hello students, good morning. Our today's topic is surface area of a right circular cylinder. So first of all, we will discuss what do you understand by as right circular cylinder. For example, in daily life, you have seen so many right circular cylindrical forms. Likewise, in our houses, we kept a drum which is vertical to its base and its top and bottom both are circular. Let us see, let us suppose this is any drum which is generally we use in every house in this way, whose base is circular and top is also circular and it is kept vertical to its base. That's why this one is known as right circular cylinder. So for example, this is any right circular cylinder, then we have to find the surface area of right circular cylinder. Surface area means what is the area of its base, what is the area of its top, and what is area of its lateral surface. Lateral surface means I suggest generally, let us suppose this one is any right circular cylinder. For example, this one is any right circular cylinder whose base is C. This one is circular form and top is also circular form. If I cut this right circular cylinder vertically and open, then it will be in the rectangular form. So this is the base and its shape is circular, means in the form of a circle, and this one is the top and top is also circular, means its top will be in the form of circle, and this one is lateral surface. Lateral surface which is in the form of rectangle. So let us say the radius of its base, let us suppose this is the center and this is the R radius of its base, circular base. Then top will be also circular, so its radius will be also R. And if the vertical height, let us suppose if we take height is h, then area of circular base, area of square क्या हो, sorry circle क्या होता है pi r square, so area of its base will be pi r square. Similarly, area of circular top, because top is also circular, so top will be equals to pi r square unit square. Now lateral surface area will be equals to, because this one is the lateral surface and this is in the form of rectangle, so its area will be L into B. So B we can consider as the height and length we can consider as the, if we open it, then it will be the circumference of the circle. So total length will be 2 pi r. So length is 2 pi r into height is h. So lateral surface area is 2 pi r h. Now total surface area of a right circular cylinder will be area of base pi r square, area of top pi r square, lateral surface 2 pi r h.
So it will be pi r square 2 pi r square plus 2 pi r h. We can take common 2 pi r. So if we take 2 pi r as common, then r plus h. So 2 pi r into r plus h unit square will be the total surface area. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSA, total surface area of right circular cylinder RCC. TSA of RCC means total surface area of a right circular cylinder. That will be 2 pi r into r plus h unit square. So this one is about the surface area of a right circular cylinder. Please pause the video note down and we will do the exercise question. Question number first. Exercise 13.2. Read the question. The card surface area of a right circular cylinder of height, right circular cylinder दे रखा है कोई. You can make a small figure. This one is any right circular cylinder, and its height. This is the height. Height h is given equals to 14 centimeter, and the card surface area. एक ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, उसका कार्ड सरफेस एरिया दैट इज वी कैन राइट एज द कार्ड सरफेस एरिया इज गिवन. कार्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर square, and the height is height of right circular cylinder equals to 14 centimeter. Now what is the card surface area of cylinder? Card surface area of cylinder अभी हमने बताया था 2 pi RH. So 2 pi RH is given 88 centimeter square, and where height is 14. So 2 pi r into 14 will be equals to 88 centimeter square. Now where pi we have to use 22 by 7. So r will be equals to 88 divided by 2 pi into 14. देखो 2 pi और 14 को अपन डिवाइड कर देंगे. So r will be 88 upon 2 into 14 into pi की वैल्यू कितनी होती है 22 upon 7. Now डिनोमिनेटर में 22 upon 7 ये रेसिप्रोकल होगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 88 into 7 upon 2 into 14 into 22. नाउ रेशनलाइज कर दें इसको 22 से 88 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से 14 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 इस 4 से ये 4 कट गया, तो r इज 1 सेंटीमीटर. सो रेडियस कितनी आई आपकी 1 सेंटीमीटर. रेडियस 1 सेंटीमीटर. देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर. ऐसे सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा? नाउ diameter of circular part will be equals to twice into radius. So it will be twice into 1, that will be 2 centimeter. So this one is the question number first. Please pause the video and note down. Second question. Assume pi is equals to pi हमें यूज लेना है 22 by 7. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 centimeter. A closed cylindrical tank. This is the, let us suppose, closed cylindrical tank है, और इसमें क्या given है? Cylindrical tank of height 1 meter. So this one is your height, that is 1 meter. Okay. And its base diameter is 144 centimeter. This is the base diameter. Diameter means
from one end to another end, this is 140 सेंटीमीटर। देखो इसको अपन 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों जो यूनिट है रेडियस और हाइट both should be in same unit, whether it should be in meter or whether should be in सेंटीमीटर। अब देखिए ये डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, इंप्लाइज द रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ, तो d/2 दैट इज 140 अपॉन 270 सेंटीमीटर आपका सिलिंड्रिकल टैंक के बेस की रेडियस हो गई। नाउ क्या पूछ रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट, ऐसा एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना हमें किसी मेटल शीट से जिसकी हाइट 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर है और बेस का जो डायमीटर था 140 सेंटीमीटर मींस रेडियस 70 सेंटीमीटर हो गया। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द बेस, बेस के लिए how many square meter of the sheet are required for the same, इस सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितना आपको मेटल शीट की जरूरत होगी। सो सबसे पहले देखिए गिवन height of right circular cylindrical tank is equals to height means h, वो कितना दे रखा है 1 मीटर, and diameter of right circular cylindrical tank D is equals to 140 centimeter. So radius will be equals to radii of right circular cylindrical tank, that is R will be equals to 140 upon 2 that is 70 centimeter। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 70 upon 100 मीटर that is 0.7 मीटर, रेडियस ये हो गया। नाउ ऐसे सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की आवश्यकता होगी। So area of sheet required, कौन सी शीट, मेटल शीट, area of sheet of metal या मेटेलिकल शीट भी बोल सकते हैं, area of sheet of metal required कितनी होगी, equals to PSA total surface area of right circular cylindrical tank, जितना राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया होगा और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 pi r into r plus h यूनिट स्क्वायर। नाउ इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ ऊपर सोल्व कर लेते हैं। सो TSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल टैंक विल बी इक्वल्स टू 2 into pi/7, रेडियस आपकी 0.7 है इंटू आर आपका 0.7 प्लस 1 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 22 इंटू 2 दैट इज 44 इंटू 1.7 1 प्लस 0.7 1.7 डिवाइडेड बाई 10 मीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को भी यहाँ हटा दे, 100 हो जाएगा। नाउ 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर ले, 44 इंटू 7, 7 से 7 4 जा 28 कैरी 2 308 इंटू 4 4 8 कर ले 847, तो 748 दैट विल बी 748 डिवाइडेड बाई 100 meter square, that is 7.48 meter square metallic sheet will be required to form such a right circular cylindrical tank. So please pause the video note up. Question number 3, please read out the question number 3. Question number 3 is a metal pipe is 77 centimeter long. This is a metal pipe and pipe का फॉर्म कैसा होता है, सिलिंड्रिकल।
क्योंकि उसका जो टॉप होता है वो भी सर्कुलर होता है और बॉटम भी उसका क्या होता है, सर्कुलर होता है। देखिए सिलेंडर में कोई भी अगर सिलेंडर है, जैसे अपन जो किचन में जो सिलेंडर यूज लेते हैं उसका जो टॉप जहां अपन बर्नर लगाते हैं 3 पार्ट जो होते हैं उसको हटा दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक्चुअली सिलेंड्रिकल पाइप का एक एग्जांपल है। जैसे अपने होम में जो ड्रेनेज पाइप होते हैं, छत का पानी निकलने के लिए जो गोल अपन पाइप लगाते हैं, अगर उस पाइप को आप कभी देखा तो उसका टॉप सर्कुलर होता है और बॉटम भी उसका ऐसा सर्कुलर होता है और बीच वाला जो पार्ट है दिस इज सिलिंड्रिकल। ओके, तो अपन ने बताया कि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, टॉप का एरिया भी पाई आर स्क्वायर और जो बीच का लेटरल सरफेस है वो 2 पाई आर एच होता है। ओके, इन तीनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन ये है कि एक सिलिंड्रिकल मेटल पाइप है जिसकी हाइट मींस ये h दे रखा आप देखो 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, इनर डायमीटर का मतलब जो सिलिंड्रिकल पाइप है उसकी अंदर से अंदर यहां से लेकर के यहां तक का इनर मतलब इस जो वॉल की जो विड्थ है उसको काउंट नहीं है। इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर मींस अगर अपन इसकी जो आउटर वॉल को काउंट करें तो यहां मतलब इंक्लूडिंग वॉल जो है दैट इज 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए गिवन हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप की हाइट कितनी है 77 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इनर सेक्शन जो इनर सेक्शन है उसकी रेडियस जो है लेट अस सपोज उसको अपन स्मॉल आर मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर सॉरी, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड रेडियस ऑफ आउटर सेक्शन मींस बाहर से बाहर, उसको अपन कैपिटल मान ले क्योंकि डायमीटर दे रखा है, 4.2 तो रेडियस हो जाएगी 4.4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस 2.2 है। अब अपने को क्या निकालना है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सेक्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई r कितना है स्मॉल r h, तो 2 पाई r h, तो 2 into पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अपनी 2 हो गई और h दे रखा आपको 77, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, r रेडियस है, h रेडियस का मतलब जैसे जो सर्कुलर पार्ट होता है जैसे ये सर्कल सेंटर से लेकर के आउटर तक की रेडियस, ये है रेडियस, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की इनर जो रेडियस है वो r है और हाइट है कि बॉटम सेंटर से टॉप सेंटर के बीच की जो हाइट है दैट इज 77 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से 77 11 टाइम कर जाएगा, 2 2 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा इससे किससे 22 से, तो 88 into 11 8 जा 88 का 8 88 11 8 जा 88 और 8 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर जो सरफेस एरिया है दैट इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वैसे ही CSA सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सेक्शन का एरिया कितना होगा, आउटर सेक्शन का एरिया होगा
2 पाई कैपिटल R into H. So it will be equals to implies that ये कितना होगा 2 as it is पाई आपका 22/7 है, रेडियस आपकी 2.2 सेंटीमीटर है, हाइट आपका 77 है। देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, ये 7 से 11 बार कट गया, ठीक है। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये आ जाएगा आपका 44 into 22 into 11 divided by 10. So on solving it will be 1064.8 centimeter square. This will be the outer curved surface area of cylinder. अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड ऑफ द पाइप। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अपन करते हैं इसके बाद। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, हरी अप। यस, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपन ने कर लिया। थर्ड पार्ट है कि ऐसा जो आपका सिलेंड्रिकल पाइप है, इसका टोटल सरफेस एरिया अंदर और बाहर प्लस सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना होगा। तो फिर से हम एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अपन ने बताया कि ये आपका एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका टॉप सर्कुलर है, बॉटम भी सर्कुलर है। यूं मान के चले कि इस पाइप को इमेजिन करें आपके दिमाग में कि आपके पास एक मेटालिक पाइप है जिसके टॉप और बॉटम पर अपन ने क्या लगा रखा, ढक्कन लगा रखा है, और उस मेटालिक पाइप को आपको कलर करना है। तो कहाँ कलर करेंगे? पहले आउटर सरफेस पे करेंगे, टॉप के ढक्कन पे करेंगे और अंदर के ढक्कन पे करेंगे, बॉटम के ढक्कन पे करेंगे, और फिर इनर वाले पार्ट पे भी आप एरिया करेंगे सो दैट कि इस पर कोई जंग वगैरह ना लगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया, थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ इनर प्लस CSA ऑफ आउटर प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड। सर्कुलर एंड का मतलब जो सर्कुलर एंड है बॉटम एंड ऑफ उसका। आप देखो इनर का कितना था, 2 पाई RH था, इसका 2 पाई कैपिटल RH था, और जो सर्कुलर एंड है उनका एरिया कितना हो जाएगा आपका? देखो उसका अपन लिख सकते हैं बॉटम जो है, देखिए टॉप का एरिया हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर माइनस ऑफ पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ देखिए कि जो पाइप है दैट इज ओपन है, टॉप और बॉटम पे ओपन है। अगर पाइप को आप ध्यान से देखेंगे, लेट अस सपोज पाइप का एंड ये, तो केवल इस तरीके का आपको एक सर्कुलर एंड मिलेगा। केवल इसमें अपने को इनर रेडियस दे रखी है, आउटर रेडियस दे रखी है, तो जो ऊपर की ओनली एजेज है उसका एरिया होगा। आउटर से निकालेंगे तो पाई कैपिटल R स्क्वायर और इनर का निकालेंगे तो पाई स्मॉल r स्क्वायर, और दोनों को डिफरेंस करेंगे तो केवल उस एजेस का एरिया आ जाएगा। ये इसको आप बहुत ध्यान से समझे। आप देखो 2 पाई R स्क्वायर H की अपन ने वैल्यू निकाली थी, ये कितनी आई थी? ये वैल्यू थी आपके पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर थी।
2 पाई आर एच आउटर की थी अपनी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, प्लस जो आपका है जो सर्कुलर एंड का है दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई अपन कॉमन ले सकते हैं और आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल्स टू 968 प्लस 1064.8 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। जो आउटर सेक्शन का रेडियस था वो 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इनर था 2 स्क्वायर। So finally you can calculate 968 plus 1064.8 plus 22/7 into, देखिए ये हो जाएगा आपका 22 का स्क्वायर कितना होता है 2.2, तो अपन देख सकते हैं 2.2 into 2.2 अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 44 into 44 ये हो जाएगा 4.84 माइनस ऑफ 4, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 968 प्लस 1064.8 प्लस 22/7 into 0.84 centimeter square. So this is the your total surface area of cylinder. Please pause the video and note down.